Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School. Today we discuss the chapter 3rd, Motion in Straight Line. In previous lecture we have already discussed in this chapter distance and displacement. So today's key points are speed, velocity, acceleration and retardation. So in this lecture we have covered these topics. So now the very first topic is speed. Speed क्या है, वेलोसिटी क्या है एंड दोनों में डिफरेंस क्या है. सो स्पीड, व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड स्पीड. कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में मीन्स 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. एंड स्पीड इज अ डिस्प्लेसमेंट distance upon time. किसी भी यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज अ स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो एस इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. And the SI unit of speed. The SI unit of distance is a meter. And time, the unit of time is a second. So unit of speed is a meter per second. We can also write meter per second. Dimensional formula. Dimensional formula. So dimensional formula, distance. So distance is represented by L and time is represented by T. So this formula is LT inverse. So in form of MLT we can write MLT. Here M0, dimensions of M is 0, L dimensions of L is 1 and dimensions of T. So ML, M naught LT minus 1 is the dimensional formula of speed. डायरेक्शन स्पीड में क्या है, डिस्टेंस. हम स्केलर क्वांटिटी मीन्स हमें इससे हमें किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में स्पेसिफिक डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज अ velocity. Means velocity, displacement upon time. Here in a specific direction, travel distance in a specific direction, so we use here displacement upon time. Displacement is a vector quantity. And also in a velocity there is a specific direction, so velocity is a vector quantity. And the SI unit. So how to create SI unit we have already discussed in previous lecture. So displacement, unit of displacement is a meter upon time. The unit of time is a second. So meter per second. And in case of dimensional formula, displacement क्या है, type of length, shortest length. So it is represented by capital L and time T. So we can write LT minus 1 and in form of MLT, M naught LT minus 1. So in both case, speed and velocity we see that as a unit and dimensional formula are same, both the speed and velocity. So but only difference is here, speed is a scalar and velocity is a vector quantity. And there is no requirement of direction in speed.
and there is a specific direction in a velocity. So this is a speed and velocity. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, so next is a uniform speed, and next is a non-uniform. So uniform speed क्या है? When an object travels same interval, when an object travels same distance in a same interval of time, then that speed is called uniform speed. Means uniform travel same distance in same interval of time. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन उसकी स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक कार ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, and there is a time in equal time interval. One hour, also 1 hour, and here 1 hour. Here same equal time interval 1 hour, and ये कार यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है. तो ये इनिशियल स्टार्टिंग का फर्स्ट आवर है, उसमें ये ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में ये फिर से 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 5 किलोमीटर. फिर थर्ड इंटरवल में फिर से ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है, एंड नेक्स्ट 1 आवर में फिर से ये 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है. यहाँ पे क्या है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम एंड ट्रेवल सेम डिस्टेंस. जितना हमने इंटरवल लिया है सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस. स्टार्टिंग के 1 आवर में 5 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर मीन्स इंटरवल हमारा सेम है, उस पर भी इसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो मीन्स दिस इज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस कार. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. Non-uniform speed when a moving object travel unequal distance in a same interval of time. That speed is called non-uniform speed. For example, unequal distance in a same interval of time. So example, एक कार है A जो कि यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट करती है. हमारे पास सेम इंटरवल है 1 आवर, नेक्स्ट इज ऑल्सो 1 आवर. ये 1 आवर के हमारे पास सेम इंटरवल है. देन ये कार फर्स्ट आवर में ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर, बट फिर नेक्स्ट 1 आवर में इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया और इसने 1 आवर में ट्रेवल किया 7 किलोमीटर. फिर नेक्स्ट 1 आवर में इसने ट्रेवल किया 8 किलोमीटर. और 1 ही है, लेकिन नेक्स्ट 1 आवर में इसने 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया. फिर नेक्स्ट 1 आवर में इसने फिर से 6 किलोमीटर ट्रेवल किया. मीन्स यहाँ पे क्या है? फर्स्ट इंटरवल में 5 किलोमीटर, फिर सेकंड 1 आवर का ही इंटरवल है, बट उसमें उसने 7 किलोमीटर ट्रेवल किया. मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस हो गई. टाइम इंटरवल सेम है,
नेक्स्ट वन में 8 किलोमीटर ट्रेवल किया है एंड लास्ट वन और इंटरवल में 6 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, अनइक्वल डिस्टेंस इन अ सेम इंटरवल। So this type of speed is a non-uniform speed. Okay. And in a case of velocity, uniform velocity and non-uniform velocity. The same distance in a specific direction in same interval of time. That is a uniform velocity. And in case of non-uniform velocity, so unequal displacement in a specific direction in a same interval. In that speed is called non-uniform. So in that speed is called non-uniform velocity. Okay. So now the next topic is acceleration. 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 The rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of means से कोई भी व्हीकल है देन वो पहले 6 की स्पीड से जा रही थी और थोड़ी देर बाद उसने अपनी स्पीड कर ली 7। मीन्स क्या हुआ, टाइम के साथ उसकी स्पीड में चेंजिंग हुई। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कुछ भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी which called acceleration. So acceleration is represented by small a and rate of change means velocity, change in velocity upon time, change in velocity upon time. So in initial condition when t is equal to t1, then velocity is v1, and when time is equal to t2, then velocity is v2. स्टार्टिंग के t1 टाइम में वेलोसिटी v1 है एंड फिर नेक्स्ट t2 टाइम में वेलोसिटी v2 हो जाती है। मीन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। सो एक्सीलरेशन a इज v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। So we can write del v upon del t. Acceleration में क्या देख रहे हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सीलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। And vector quantity is represented in bar symbol. Okay. So acceleration, there are positive acceleration, positive and negative. पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, जब किसी भी वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है, दैट इज अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एंड कभी भी जब ऐसे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे कि अगर हम 10 की स्पीड से कहीं जा रहे हो, थोड़ी देर बाद हमारी स्पीड 8 हो जाती है, वेलोसिटी में क्या हुआ, टाइम के साथ डिक्रीजमेंट हुआ। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है देन दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है देन दैट इज एक्सीलरेशन, एंड जब एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाता है मीन्स उसकी वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और डिक्रीजमेंट इन वेलोसिटी। Okay,
तो ये था एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन में, इसको भी हम ए बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली डिफरेंस ये है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। एंड रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन हमेशा निगेटिव होता है। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे पूरे टॉपिक्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज का चैप्टर यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।